Hello guys, so welcome to an academy. Welcome to the session. I hope I'm audible. So today small adjustment. आज थोड़ा सा काम है, अर्जेंट वर्क है, बट आई डोंट वांट टू स्टॉप योर लर्निंग. सो क्या करेगा, आज तो मैं प्रीमियर कर रहा हूँ लेक्चर को. कल से फिर लाइव कंटिन्यू हो जाएंगे. टुमारो ऑनवर्ड्स लाइव विल बी कंटिन्यूड एज इट इज़. आपका डाउट्स है तो कल क्लास में हम डिस्कस करेगा. सो आज तो मैं सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स कंप्लीट करना चाहिए. सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स में अभी तक क्या डिस्कस किया, टोटल सीक्वेंशियल सिंक्रोनस डिज़ाइन. इसके बाद कल क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन्स तो डिस्कस किया. सो लेट्स कंटिन्यू दैट. Let's continue the FSM and I will complete the FSM today's class. Okay, so let me introduce myself. This is Bhima Shankar Mantina. I did my MTech from IIT Kharagpur. I have around 10 years of teaching experience in GATE and ESE throughout the country. I am expertise with the subjects of digital circuits, network analysis and microprocessors. Last 10 years I taught the same subject to thousands of batches and thousands of students every single year. So I train most of the students who are weak, strong, irrespective of their position to reach their destination. I am very happy to provide this content in the YouTube platform so that more number of students able to learn and enjoy the subject. Okay, so listen here guys. So daily we will be meeting from 8:15 to 9:15 Monday to Friday, Saturday Sunday morning 11:30 to 1:30. Okay, so let's move. Give me a minute. So let's discuss few things about an academy plus subscription. You know, an academy, our total creatrix teams, our team is providing you the best possible content in all the possible ways, whether it is a free platform like YouTube or whether it is a paid platform in the Unacademy Plus subscription. Even it is paid, not heavily cost. It is just what is the lowest possible price we are providing, and we are also providing the best possible content, and also we are giving you the content in a way such that every single student, even a weak student, is able to learn. So if you go for an Academy Plus subscription, so Plus subscription is having some advantages. What are they? So Plus subscription is for Unacademy Learning App. Plus subscription किसके लिए सर? Unacademy Learning App के लिए. So not for the YouTube classes. YouTube classes तो completely free. In Unacademy also special classes are there which are completely free. हमारा quizzes भी completely free. So Plus class में क्या सर? You will be having a live class. Okay. Daily morning and evening generally structured scheduled wise live classes are there. You can attend the live. If you miss it, you can watch the recorded class n number of times without any restrictions. So past classes, future classes and the present classes without any restrictions you can watch. So we have the classes in both the languages, English and also Hindi. We have multiple batches. This is the unique feature of an academy. Once the student takes the subscription, he is eligible for all batches in the Unacademy. It can be crash course. We don't charge again and again. Rank improvement batch, comprehensive batch, every single batch my student is available or eligible. So you have a regular exams like weekly exams and monthly exams, subject wise exam and complete test series and unlimited practice of the previous year's questions. Everything is available under one subscription, that is an Academy Plus subscription. So if you go for Iconic subscription, you will be having more advantages. You will be getting personalized coach who will guide you to reach your destination in the best possible way, personalized way, where you are weak, where you need to strong, which subject you, whom to follow, which course to be followed, everything. What is your analysis based on your performance. So what you need to do, how to boost your preparation, everything is given by the Iconic subscription guys. So if you come to the fees, okay, so you can message me in my Unacademy profile, follow me on the profile and you can watch all my free classes without any limitations. So if the free classes ask any code, you can apply my coupon code and access free classes also. You can access all the free classes using my coupon code. So this is my
profile name. There you go, and there you can search my name. There you can see all my free classes and all in Unacademy platform, guys. So if you go for the payment structure, what is the fee details, sir, for Unacademy Plus subscription? What are the fee details, sir? See here. If you go for GATE and ESC subscription for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months and 24 months, these are the fee details. Okay, 5,500, 13,000, 24, 30,000, 38,000 and 44. But if you apply my coupon code Shankar10, you get 10% discount on any course of Unacademy Plus subscription, guys. So what are those courses? In any course for GATE and ESC for 1 year, you get it for 27,000 instead of 30,250. For 18 months, you get it for 34,650 instead of 38,500. Similarly, for 2 years, it is 44, but after applying the code, you will be getting it for 39,600. So this is for iconic subscription for 1 year and 2 years, originally 50 and 74,000. By applying the coupon code, you get 5,000 and 7,400 discount, and these are the final prices after discount for iconic subscription, guys. So okay, let's move. So this is by this week I want to complete your total subject, so that's why I don't want to leave a single class by any chance. So let's start. So we have already done good number of problems on sequential. Let's recap little fastly. All these questions we have done in the previous classes. So right. So last lecture, yesterday class, we started FSM, finite state machines. So in the finite state machines, what we have discussed, what is the meaning of FSM? Practically, how to draw the state diagram. So what are the different ways you can have Mealy design and Moore design? We took one example. Iska we have made some block diagram like this. Then we have implemented using state table, state assignment, input output table. Then we have made and completed the design, right? Then we have converted the Mealy design into Moore design. Then in the Moore design, what is the advantages, Mealy, what is the advantages, all those things we have discussed. And we have done some previous year GATE paper questions. Then we have ended the class. So I have given this state diagram. So draw the state diagram of all flip-flops is your question in the last lecture. Okay. So we will discuss the homework question at the end of the class. So let me first complete the remaining part, then I will come back to the homework part. Okay. So state table reduction we have discussed. This is the part. Okay. And in the state table reduction, we have gone to different steps and proved that before and after reduction, we will be getting the same kind of output for the same set of input sequence. Then we are starting this now. This is the important topic in 2020 in EC GATE. One question came, in WE also one question appeared from this topic, sequence detector. So let's discuss. So sequence detector क्या करेगा सर? Sequence detector का काम क्या? Sequence detector the name itself indicates. अभी तक हमने क्लास में डिस्कस किया जो प्रॉब्लम्स है ना, इसमें क्या किया, पहले स्टेट डायग्राम हमारा पास है तो इसको एनालिसिस क्या करना वो डिस्कस किया. बट अभी क्या डिस्कस करेगा सर? अभी क्या डिस्कस करेगा, मेरा पास स्टेट डायग्राम नहीं है, मेरा पास स्टेट डायग्राम नहीं है, मैं तो स्टेट डायग्राम ड्रा करना चाहिए. प्रॉब्लम दिया तो इसका स्टेट डायग्राम कैसा ड्रा करना वो पार्ट अभी डिस्कस करेगा. सो स्टेट सीक्वेंस डिटेक्टर का काम क्या सर? कल से फिर लाइव पे आएगा कंपलसरी. ओके, आज तो प्रीमियर, प्लीज अंडरस्टैंड. सो सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है सर? इन सीक्वेंस डिटेक्टर when the input contains or when you get a certain sequence of inputs in your input, then it will give you output may 1, otherwise it will be 0. So see here. So let's take a question. Draw the state diagram of a sequence detector for the following sequence. क्या sequence का sequence detector चाहिए सर? 11011. इसका मतलब क्या सर? हमारा इनपुट में 11011 जो इनपुट सीक्वेंस, इनपुट में बिट बाय बिट आ रहा है, इसमें अगर 11011 आएंगे तो हमारा आउटपुट में 1 आना चाहिए. Whenever your input is 11011, your output should be equal to
1. That is what we call sequence detector for the particular sequence 11011. So इसमें दो टाइप ऑफ सीक्वेंस डिटेक्टर्स पॉसिबल है. क्या क्या है सर? ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग. क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सर? ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग. इस दोनों को डिफरेंस क्या सर, वो तो मैं पहले एक्सप्लेन करेगा. लिसन हियर. रैंडमली ले रहा हूं मैंने. सपोज हमारा इनपुट पे okay, this is your input sequence. So whenever 11011 comes, I should give output equal to 1. ये मेरा sequence detector का काम. Sequence detector will read like this 11009. Yes, 11011 comes. Output में 1 देता है. बाकी केस में आपका output 0 होता है. फिर पढ़ो 11011 आया, आउटपुट में 1 दे दो. फिर पढ़ना चाहिए, नहीं आया छोड़ दो. दिस इज व्हाट वी कॉल सीक्वेंस डिटेक्टर. इसको क्या कहते हैं सर? नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर. नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर. ये खत्म हुआ तो नया सीक्वेंस स्टार्ट करके रीड करेगा. ये आएंगे तो इसके बाद नया शुरू करेगा. इसको क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग. इट विल रीड वेन एवर 11011 कम्स. इस वाला क्वेश्चन में 11011 इट विल गिव यू 1, अदरवाइज इट विल गिव यू अप टू दैट 0. इसके बाद इट विल स्टार्ट फ्रेश वेन एवर 11011 कम्स इट विल गिव 1. इट विल स्टार्ट फ्रेश वेन एवर 11011 कम्स इट विल गिव यू 1. इसको क्या कहते हैं सर? नॉन ओवरलैपिंग. बट इसमें देखो, ध्यान से देखो, 11011 जो है ना, इफ यू रीड लाइक दिस इट विल गिव 1. बट इफ यू रीड लाइक दिस इट शुड ऑल्सो गिव 1. दैट इज, इस केस में क्या हुआ सर? दो 11011 ओवरलैप्ड विथ ईच अदर. इसको क्या कहते हैं सर? ओवरलैप्ड सीक्वेंस. इसको दिस काइंड ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड ओवरलैप्ड. Last two ones of the previous sequence can be treated as the first two ones of the next sequence. उस केस में हमको दो 1 आएगा आउटपुट में. This is one 11011 and this is also another 1101. दोनों केस पे आपका आउटपुट में 1 आना चाहिए. I am repeating, the last two ones of the previous sequence and the first two ones of this sequence both should give you 1. This is what we call ओवरलैप्ड सीक्वेंस डिटेक्टर. ओवरलैप्ड सीक्वेंस डिटेक्टर है ये. ठीक है सर, हो गया. इसके बाद कुछ इस वाला फिगर एनालाइज करो. 11011 आया, 1 आया. नाउ you should not start fresh. You should go back by 2 bits and start. Yes, another 11011 आया. फिर yes 11011 आया. फिर शुरू करो, कुछ नहीं आया. दैट इज earlier once the sequence completed I started fresh. इसको क्या कहते हैं सर? नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर. बट इस केस में क्या है सर? एक सीक्वेंस तो कंप्लीट हो गया, मैं तो शुरू नया नहीं शुरू किया, बट इसको प्रीवियस 2 को लेके I started the fresh sequence. That is the last 2 ones of the previous sequence and the first 2 ones of the next sequence are assumed to be same, because in this particular bit sequence last 2 bits and first 2 bits are same. Suppose if it is 101 sequence detector, first one and last one, इस केस में हमको overlapping part क्या होता है सर? सिंगल बिट. बट इस केस में कितना बिट्स ओवरलैप हुआ? लास्ट और फर्स्ट में 2 बिट. ठीक है सर. सो ऐसा आपका आउटपुट में 1 दिया तो इसको क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर.
एग्जामिनर को दोनों डिजाइन्स चाहिए, एग्जामिनर को दोनों डिजाइन्स चाहिए. लेट्स डू बोथ द डिजाइन्स एंड शो इट. दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, चलो. फर्स्ट आई एम डिजाइनिंग just a minute. Sequence detector. ठीक है, पहले हम ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद नॉन ओवरलैपिंग भी डिस्कस करेगा. पहले तो शुरू करेगा ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर पे. सो ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर में क्या सर? सो आई विल स्टार्ट विथ, सी हियर, दिस इज द स्टेट. ये आपका प्रेजेंट स्टेट. I want to draw the diagram. Before that, I am doing the analysis. Present state. आपका input. What is the next state? ठीक है, ये वाला टेबल जैसा डायग्राम I am taking. So presently I will start with the initial state S0. S0 का मतलब क्या सर? स्टार्ट हुआ सिस्टम. ये तो हमारा इनिशियल स्टेट है. S0 में है, हमने सिस्टम अभी शुरू किया, स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के बाद इसको दो चांसेस होता है. योर इनपुट कैन बी 0 और 1. आपका इनपुट क्या होने चांस है? इनपुट कैन बी 0 और 1. दो पॉसिबिलिटीज है. सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज में आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होता है? आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होता है सर? फर्स्टली लिसन, आपको क्या चाहिए? 11011. सो इनिशियली 0 है, फिर एक और 0 आएंगे तो क्या करना सर? यू शुड वेट एट द स्टार्टिंग ओनली. बिकॉज आपका जो रिक्वायर्ड वो तो नहीं आया ना. आपका जो रिक्वायर्ड है ना, इसमें कहाँ से शुरू करेगा सर? 1 से शुरू करेगा. वट एवर यू नीड विल स्टार्ट विथ 1, बट इसमें इट इज स्टार्टिंग विथ S0. ठीक है, इट इज स्टार्टिंग विथ 0 मीन्स यू शुड वेट फॉर 1. सो आउटपुट में क्या देना सर? 0. अच्छी बात है, यही तक क्लियर हो गया. सो अभी देखो, अगर इनपुट में 1 आएंगे तो यस, मेरा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस ना, इसका फर्स्ट बिट आया. सो नेक्स्ट स्टेट पर आगे चलो. इसका नाम क्या सर? S1. S1 का मतलब क्या सर? 1 हैज ऑलरेडी appeared. Then what is the output you will get here? What is the output you will get here? It is not 1. Your output is here also 0 only. इस केस में भी आपका आउटपुट 0 ही होता है, क्योंकि आपका आउटपुट में 1 कब आएगा सर? पूरा सीक्वेंस आने के बाद. वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, दैट डजंट मैटर. पूरा सीक्वेंस आने के बाद आपका आउटपुट में 1 मिलेगा. ठीक है सर, अच्छी बात है. यही तक क्लियर हो गया ना? मैंने सिस्टम को शुरू किया, मेरा इनपुट में दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. इनपुट कैन बी 0, इनपुट कैन बी 1. अगर इनपुट में 0 आएंगे तो मैं S0 पे वेट करेगा 1 के लिए. अगर 1 आए तो आगे चलेगा. नाउ द न्यू स्टेट आई रिप्रेजेंट इज S1. S1 का मतलब क्या सर? 1 हैज ऑलरेडी अकर्ड. S1 का मतलब क्या सर? 1 हैज ऑलरेडी अकर्ड. इस केस में भी मुझको दो पॉसिबिलिटीज है. योर इनपुट कैन बी 0, इनपुट कैन बी 1. अगर इनपुट 0 है तो इसका मतलब 1 0 हैज अकर्ड. नो, मुझको क्या चाहिए? 11011 मीन्स 1 1 शुड हैपन. बट अगर स्टार्टिंग पे 1 0 आएंगे तो क्या करना सर? चलो वापस S0 पर, वापस S0 पर चलो. ठीक है, सो आउटपुट पे 0 दे दो. स्टार्टिंग से फिर वेट करेगा. अगर 1 के बाद एक और 1 आएंगे तो 1 के बाद एक और 1 आएंगे तो इसका मतलब 1 हैज हैपेंड. 1 हैज हैपेंड. यस, आई विल मूव टू द न्यू स्टेट. इसका नाम क्या सर? S2.
इसका नाम क्या सर? S2. S2 का मतलब क्या? डबल वन हैज अकर्ड. सो लिसन हियर. You are in the state 2. Okay. So here also two possibilities are there. आपका input can be 0 or 1. ठीक है, आप S1 पे है तो दो पॉसिबिलिटीज है. इनपुट कैन बी 0 और 1. इनपुट में 0 आएंगे तो S0 पर चलेगा, इनपुट पे 1 आएंगे तो नया स्टेट S2 पर चलेगा. S2 पे क्या सर? 1 1 1 1 आ गया तो अगर इनपुट में 0 आएंगे तो डबल 1 0 मेरा रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, आगे चलेगा नया स्टेट S3 पे, आउटपुट तो 0. S3 का मतलब क्या सर? डबल 1 0 हैज हैपेंड. ठीक है. अगर अभी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अगर इनपुट पे 1 आएंगे तो 1 आएंगे तो कहाँ चलना, आप लोग ट्राई करके कमेंट करो. 1 1 1 3 वंस आएंगे तो कहाँ चलना. इफ योर S2 इज 1 1, इसके बाद इनपुट में एक और 1 आएंगे तो आपका आउटपुट में क्या आता है सर? इट इज 1 1 1. इफ यू गेट अनदर 1 इन योर इनपुट, व्हाट विल यू गेट इन द आउटपुट? ट्रिपल 1. ट्रिपल 1 हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस और अनडिजायर्ड सीक्वेंस? इट इज नॉट अनडिजायर्ड. इट इज नॉट द डिजायर्ड बट इट इज ए पार्ट ऑफ ए सीक्वेंस. क्योंकि देखो 1 1 के बाद 0 आएंगे तो मेरा सीक्वेंस आगे चलेगा. 1 1 के बाद 1 1 1 1 1 ऐसा आके फिर 0 आया. सो अकॉर्डिंग टू अस इफ डबल 1 के बाद फिर 1 आएंगे तो शुरू किया तो स्टार्टिंग से ये 0 डबल 1 आपको जो रिक्वायर्ड है ना वो नहीं देता है. बट इस केस में भी आउटपुट पे 1 आना चाहिए ना, इसलिए क्या करना, 1 1 1 1 1 1 के बाद एक और 1 आएंगे तो मैं वेट करेगा सेम स्टेट पे 0 आने के लिए. सो प्लीज अंडरस्टैंड हियर. इस केस में क्या 0 आएंगे तो नया स्टेट पे नहीं चलेगा, S0 शुरू पर चलेगा. ओके. बट इस केस में क्या 1 1 के बाद फिर एक और 1 आएंगे तो it is not your required but you don't go to S0 here. Why? It is not undesired. It is a part of a sequence, but sequence is, we can say, halted. We should wait for 0 at the same state, not from the starting. इसलिए यहीं पे क्या करना सर? You should wait at S2 only. सो डबल 1 के बाद 1 आएंगे तो यू शुड एज्यूम 3 वंस में लास्ट 2 वंस एज योर रिक्वायर्ड सीक्वेंस. सो कितना वंस आएंगे तो उस समय उस स्टेट पे वेट करके 0 के लिए हम वेट करेगा. ठीक है सर, यही तक क्लियर हुआ. इसके बाद देखो S3 आया. S3 का मतलब क्या सर? डबल 1 0. सो डबल 1 0 पे है. ठीक है. सो नाउ लिसन. डबल 1 0 के बाद फिर एक और 0 आएंगे तो डबल 1 डबल 0. ये मेरा डिजायर्ड सीक्वेंस नहीं, मेरा पार्ट ऑफ द सीक्वेंस भी नहीं है. डबल 1 के बाद 1 आएंगे तो लास्ट 2 1s आर पार्ट ऑफ माई सीक्वेंस. बट डबल 1 0 के बाद 0 आएंगे तो डबल 1 डबल 0 मेरा सीक्वेंस का पार्ट भी नहीं है. क्या करना सर? S0 पर चलना. बट डबल 1 0 के बाद 1 आएंगे तो मेरा सीक्वेंस है ये. सो S3 से S4 तक चलेगा. सो अच्छी बात है, यही तक समझ हो गया. सो नेक्स्ट देखो S4 पर चला. S4 विथ आउटपुट इक्वल टू 0. यू केम टू S4. S4 का मतलब डबल 1 0 1. इस स्टेट में भी दो पॉसिबिलिटीज है. क्या सर? योर इनपुट कैन बी, एक मिनट, ठीक है. सो डबल 1 0 1 पे भी दो स्टेट्स पॉसिबल है. आपका इनपुट में 0 आने का चांस है, 1 आने का भी चांस है. अगर डबल 1 0 1 के बाद फिर 0 आएंगे तो इसका मतलब क्या सर? डबल 1 0 1 0. ये मेरा सीक्वेंस का पार्ट भी नहीं है. सीक्वेंस तो फेल हो गया. स्टार्टिंग पर शुरू चलेगा. आउटपुट में 0 देता हूँ. आउटपुट में 0 देता हूँ.
अगर इसमें ध्यान से देखो 1101 के बाद एक और 1 आएंगे तो 1101 के बाद एक और 1 आएंगे तो 1101 का मतलब क्या, मेरा रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आया, मेरा रिक्वायर्ड सीक्वेंस तो आया। सो क्या करना सर, ये तो अभी क्या डिस्कस कर रहा हूं हम, ये ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। पहले नॉन ओवरलैपिंग डिस्कस करेगा, थोड़ा सा आसान होता है नॉन ओवरलैपिंग। सो पहले क्या करेगा, नॉन ओवरलैपिंग डिस्कस करेगा। सो नॉन ओवरलैपिंग में वंस द सीक्वेंस इज कंप्लीटेड यू शुड स्टार्ट फ्रेश विद द न्यू स्टेट, दैट इज इसके बाद हम एस नॉट पर चलेगा। आउटपुट में क्या देता है सर, आउटपुट में क्या देता है सर, सीक्वेंस आया ना 1 देना, सीक्वेंस आया ना 1 देना चाहिए आउटपुट में। दिस इज व्हाट हाउ यू डिजाइन द सीक्वेंस डिटेक्टर फॉर नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर। सो इसका स्टेट डायग्राम लेट्स ड्रॉ इट। So directly you can draw the state diagram, but to avoid confusion I took that method to explain you. So when you are in the state 0, 0 occurs here, 1 occurs, 0 only, but you go to S1. Okay. See here, whatever we discussed up to now, the same thing I am discussing. Okay. Okay, directly we can draw, otherwise using the previous case. So you can see 111011 आएंगे तो आउटपुट में 1 देता है, सीक्वेंस शुरू से स्टार्ट करेगा। दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ योर सीक्वेंस डिटेक्टर। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द स्टेट डायग्राम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। डायग्राम आने के बाद हमको पूरा प्रोसेस पता है, क्या प्रोसेस है सर, डायग्राम आने के बाद क्या करना सर, डायग्राम आने के बाद स्टेट टेबल लिखना चाहिए, इनपुट आउटपुट टेबल, देन डिजाइन द सर्क्यूट। स्टेट टेबल में कुछ रिडंडेंसी है तो निकल सकते, देन वी कैन मेक द रिड्यूस्ड स्टेट टेबल इफ रिक्वायर्ड, इनपुट आउटपुट टेबल लेके वी कैन फिनिश द डिजाइन। आप लोग यू कैन डू दैट। इस केस में नंबर ऑफ स्टेट्स कितना, 5। सो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितना चाहिए आपको, log to the base to 5 अराउंड 3 फ्लिप फ्लॉप्स। आप इसका डिजाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये तो आप होमवर्क ले लो। ये तो आसान से हो जाएगा। कंप्लीट द डिजाइन के लिए किसी भी फ्लिप फ्लॉप लेके जेके आर एनी फ्लिप फ्लॉप यू टेक एंड कंप्लीट इट। कंप्लीट के लिए क्या करना, स्टेट डायग्राम को स्टेट टेबल में कन्वर्ट करना, इसके बाद इनपुट आउटपुट टेबल, इसके बाद क्या करना, डिजाइन करना, बस। सो प्लीज सी हियर, दिस इज द स्टेट डायग्राम। सो यू स्टार्ट विद 0, इफ 0 occurs you should wait, 1 occurs you should come to next। सिंपल फंडामेंटल रूल क्या है सर, अगर अनवांटेड अकर हुआ तो शुरू पर जाओ, नया सीक्वेंस स्टार्ट करो, वांटेड अकर हुआ तो नेक्स्ट पर चलो। अगर सीक्वेंस हॉल्ट हुआ तो दैट इज योर सीक्वेंस रिक्वायर्ड इज 111011, इसमें 2 1s को वांटेड कह सकते, 3 1 4 1 5 1 लाइक दैट 1 1 1 1 1 ऐसा आएंगे तो इसमें ए पार्ट लास्ट 2 1s तो हमारा सीक्वेंस का पार्ट है। सो सीक्वेंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड एंड सीक्वेंस इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड। इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस हाल्टेड है तो वी शुड वेट एट द सेम स्टेट। पूरा सीक्वेंस आने के बाद आउटपुट में 1 देना, फिर नया सीक्वेंस शुरू करना। दिस इज नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर। सो whenever 111011 comes, it should give you output में 1 and start the new sequence।
Okay, so now listen here. So let's design the overlapping part. So अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो overlapping sequence detector. The diagram changes for every sequence you detect. Here क्या sequence detect कर रहा है सर आप 11011 में. So पूरा आउटपुट आने तक सेम प्रोसेस है, आउटपुट आने समय तक सेम है. डोंट थिंक मिडिल में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, पूरा सीक्वेंस आने तक सेम. बट आफ्टर गेटिंग द सीक्वेंस, क्या सर 11011, so last two ones and first two ones are common. ठीक है. सो पूरा सीक्वेंस आने के बाद हमारा आउटपुट पे 1 देना और कहाँ जाना सर, आफ्टर गेटिंग 11011 हम तो शुरू से शुरू किया तो इट इज नॉन ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग में क्या होता है सर, लास्ट टू वंस ऑफ द प्रेजेंट सीक्वेंस will be first two ones of the next sequence. Not two ones, it is according to the input you give. इस केस में 2 मैच हो रहा है, 2 बिट्स मैच हो रहा है. ठीक है. सो आफ्टर दिस यू शुड गो टू फर्स्ट टू वंस ऑफ द नेक्स्ट सीक्वेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 वंस सर, विच स्टेट रिप्रेजेंट्स 2 वंस, यस 2. सो पूरा सीक्वेंस आने के बाद हम कहाँ पे चलेगा सर, यस 2 पर चलेगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नॉन ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग. इसमें डिफरेंट मेथड्स है. मैं क्या करेगा, एक बार सी डिफरेंट डिजाइन्स भी पॉसिबल है. एक बार सीक्वेंस में आपका जो रिक्वायर्ड है तो वो आए, तो इसके बाद सारे फिर एक और सीक्वेंस आने तक मैंने क्या करना चाहिए, सीक्वेंस पूरा आने के बाद मैं 1 देता हूं, फिर अगेन सीक्वेंस आएंगे तो 1 देता हूं. बीच में क्या देता है सर, 0. सम पीपल सम डिजाइन्स ऐसा है. सो सीक्वेंस आने तो 1 दे रहे, नेक्स्ट सीक्वेंस फेल होने तक 0 दे दो. ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. किसी भी मेथड पे रिक्वायर्ड कर यू कैन डिजाइन. हमारा डिजाइन क्या सर, यू शुड स्टार्ट विद द रीडिंग द इनपुट्स. आपको रिक्वायर्ड सीक्वेंस आएंगे तो 1 दे दो, नहीं आएंगे तो 0 दे दो. पूरा आने तक हम 0 ही देना चाहिए, पूरा आने के बाद 1 देना चाहिए. ठीक है. चलो नेक्स्ट. सो लेट्स डू सम, नो इसका स्टेट डायग्राम लिखना चाहिए ना. सो लेट मी ड्रॉ द स्टेट डायग्राम. इस किसका, ओवरलैपिंग का. देखो इसमें क्या डिफरेंस है सर, 1101 के बाद फिर 1 आएंगे तो मैं S2 पर आएगा. ये डिफरेंस है नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग का बीच में. सो इट इज नॉन ओवरलैपिंग. लास्ट ऑल theoretical requirement, almost all theoretical requirement of your sequence detector. What is that? See here previously, here after completion of the sequence it should give you 1. पूरा sequence होने के बाद आपको 1 देना चाहिए. पूरा sequence आ गए तो 1 देना चाहिए और it should start with S2. S2 पर start करना, शुरू से नहीं. इसको क्या कहते हैं सर,
overlapping. Okay, sequence detector state diagram. ठीक है, this is non-overlapping just to give you the difference between them. ये क्या होता है सर? Overlapping. ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर सीक्वेंस डिटेक्टर. सो आगे चल के प्रॉब्लम करेगा, आप लोग ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन पूरी अच्छे से पढ़ो, इसके बाद आंसर करो. 2017 गेट में दिया, जस्ट रीड इट एंड गिव योर आंसर. Okay, just give a reading and try to answer. The state diagram of a FSM finite state machine designed to detect an overlapping sequence detector of 3 bits is shown in the figure. Okay, so the FSM has the input name is in, output name is out. The initial state is S0. If the input sequence given is some input sequence is given starting with the leftmost bit, then the number of times the output is 1. You can try and give a comment. Just give a try and give your answer. Try to give your answer. Yes. So the state diagram of FSM, this is the given. So try to understand this. Let me, yes. Right. So this is the FSM given by examiner. So it is बहुत आसान से हो जाएगा. इसको दो मेथड से कर सकते. क्या क्या मेथड सर? क्या ये मेथड से भी कर सकते हैं? हमने क्लास में किया ना प्रीवियसली. फॉर द पर्टिकुलर इनपुट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्टेट डायग्राम, इस वाला मेथड से भी हो जाएगा. नहीं है तो एग्जामिनर तो दिया इट इज सीक्वेंस डिटेक्टर, सो यूज इंफॉर्मेशन यूज करके भी हम वी कैन डू दैट. वी कैन डू इट बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एग्जामिनर ऑल्सो. किसी भी मेथड पे आप ट्राई कर लो, आपको आंसर आएगा. सो देखो भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1 S0 S1 S2 S3 चार स्टेट्स है. 0 0 से 1 1 हमारा चार स्टेट्स है सर.
सारे 0 से सारे 1 तक। अगर इनपुट में 1 आएंगे तो यहीं पर चलेगा, सो इनपुट में 0 आएंगे तो यहीं पर चलेगा, फिर 1 आएंगे तो आउटपुट में 1 देता हूँ। इसका मतलब क्या सर, 101 आपका इनपुट में आएंगे तो आपका आउटपुट पे 1 आएगा। ओके, एग्जामिनर हैज ऑलरेडी गिवन दैट, प्लीज सी हियर, ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर। सो हमारा काम आसान हो गया क्योंकि examiner himself has given that it is a overlapping sequence detector. So this is the input given by examiner. So let's read it and tell the answer. Whenever 101 comes, आपका आउटपुट पे 1 आना, फिर 101 comes 1, then 101 1011, ठीक है, 4 बार आया। If you are able to understand, it is a over sequence detector which detects the sequence 101. आपका काम बहुत आसान से हो जाएगा। Sir, I am not able to find it as a sequence detector. Sir, can you help me to do it in another way? Definitely. Let me solve the same question by a different method. So listen, if you are able to find it, आपका क्वेश्चन आसान से कम टाइम पे आपको आंसर आएगा। 2017 का गेट क्वेश्चन है ये। ये आपका इनपुट है ना, देखो आपका प्रेजेंट स्टेट, ये मॉडल हम प्रीवियस कल वाला क्लास में डिस्कस किया। व्हाट इज द आउटपुट? इनिशियली S0 पर शुरू करो, S0 पे 1 आएंगे तो कहाँ चलेगा? S1 पर चलेगा, आउटपुट में 0 देता है। S1 पे 0 आएंगे तो कहाँ चलेगा? S2 पर, आउटपुट में 0। सो S2 पे 1 आएंगे तो S2 पे 1 आएंगे तो S3 पर चलेगा, बट आउटपुट में 1 देता है, आउटपुट में 1 दे के S3 पर चलेगा। फिर S3 पे 0 आएंगे तो S3 पे 0 आएंगे तो वापस S2 पे चलेगा, आउटपुट में 0। फिर S2 पे 1 आएंगे तो आउटपुट में 1 दे के S3 पर चलेगा, आउटपुट पे 1 दे के S3 पर चलेगा। S3 पे 1 आया, S3 पे 1 आएंगे तो S1 पर चलेगा। Okay, that's why it is overlapping sequence detector. After 101 फिर 01 आएंगे तो नेक्स्ट वाला भी 1 आएगा, फिर 01, कितना बार 01 01 01 आएंगे तो उतना बार 1 दे रहा है, ठीक है। चलो S3 पर 1 आएंगे तो S3 पर 1 आएंगे तो S1 पर चलेगा, S1 पर 0 आएंगे तो S1 पे 0 आएंगे तो S2 पर आएगा। फिर S2 पे 1 आया, S2 पे 1 आएंगे तो S3 पर चलेगा, आउटपुट पे 1 देता है। फिर S3 पर 0, S3 एंड 0, S3 एंड 0 है तो S2, बट S2 और 0, S2 पे 0 है तो S0 पर चलो, S0 पर 1, फिर स्टार्टिंग से S0 पर 1 है तो S1, S1 पर 1 है तो नहीं 1 मिनट, S0 पर 0 है तो S0 पर ही रहेगा, S0 पर 1 है तो S1 पर चलेगा, S1 पर 0 आएंगे तो S2, ओके, S2 पर 1 आएंगे तो S2 पर 1 आएंगे तो आपका आउटपुट क्या होता है सर? 1, एंड वी विल गो टू राइट। 4 बार आपको आउटपुट 1 आया।
सो इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जामिनर तो नहीं, ही हैज नॉट आस्क्ड, बट आई एम आस्किंग यू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. आप लोग ट्राई करके आंसर बताओ. इज देयर एनी redundant state? Is there any redundant state in this figure? Is there any redundant state in this figure? Can I say any two states which are identical? Are there any two states which are identical? Or can you reduce any state in this state diagram? State table reduction हमने डिस्कस किया. एग्जामिनर को नहीं चाहिए, बट आपको चाहिए तो देखो, आपको चाहिए तो देख के आंसर बताओ, आपको चाहिए तो देख के आंसर बताने के लिए ट्राई करो. गिव ए ट्राई, रीड इट एंड ट्राई टू गिव योर आंसर. ट्राई टू गिव योर आंसर. Just observe and try to give your answer. Just a minute. Yes, see here, the state S3, स्टेट S3 में जीरो आएंगे तो कहाँ चल रहा है सर? स्टेट S3 में जीरो आएंगे तो S2 पर. स्टेट S3 पे जीरो आएंगे तो S2 पर जा रहा है. वन आएंगे तो 1 मिनट, 1 आएंगे तो कहाँ चल रहा है सर? S1 पर. स्टेट S3, the state S3 when x equal to 0 and x equal to 1, where it is going? When x equal to, x means input, when input equal to 0, it is going to S2, and when input is 1, it is going to S1. when x equal to 0, x equal to 1, आपका आउटपुट क्या होता है सर? आपका आउटपुट दोनों केस में 0. सेम वे एनालाइज S1. S1 पे 0 आएंगे तो S2 पर चलेगा, 1 आएंगे तो S1 पर ही रहेगा. दोनों केस में आउटपुट 0 दे रहा है. सो हियर S3 equal to S1. Examiner has not asked this, but there is a chance. Okay, he can eliminate this state in this question. ये तो redundant state है. इसका जगह पे you directly take it to here. It will work in the same way. ये तो एग्जामिनर को नहीं चाहिए, हमारा एनालिसिस है ये वाला. ठीक है, हो गया सर. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट 2020 का क्वेश्चन. इट इज गिवन इन गेट 2020. यस, रीड इट एंड टेल मी योर आंसर. ट्राई द क्वेश्चन फॉर 1 minute. Try the question for 1 minute. You will be able to answer it. Try it. Very simple question. Yes, see here, the state diagram of a sequence detector is shown below. The state S0 is the initial state of the sequence detector. If the output is 1, then what is the meaning? Some sequence is detected. कौन सा sequence detect हो गया? कौन सा sequence detect हो गया? अगर आपको visibility कम है तो मैं क्या करेगा? थोड़ा सा enlarge करेगा इसको. Yes, so this is the state diagram. So the sequence 01010 is detected, or 01011 detected, 01110 or 01001. कौन सा sequence detect हो गया ये हम बताना चाहिए. So the state diagram is this one. So please listen, when do you get 1 in this particular case? ठीक है, चलो सर.
1 यहीं पे आ रहा है सर, ठीक है, 1 यहीं पे आ रहा है और किसी किसी जगह पे नहीं आ रही। सो 0 1 0 1 फिर 0 आएंगे तो आपका आउटपुट में 1 आएगा। ये तो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग एग्जामिनर को नहीं चाहिए, बट आप बताना चाहिए। ये तो एग्जामिनर को नहीं चाहिए वेदर इट इज ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, बट आप बताना चाहिए। बताओ 0 1 0 1 0 आउटपुट में आएंगे तो मेरा आउटपुट में 1 मिलेगा, करेक्ट। 0 1 0 1 0 आएंगे तो मेरा आउटपुट में 1 आएगा। यस, सीक्वेंस डिटेक्टर इट इज डिटेक्टिंग 0 1 0 1 0। आंसर तो आया आसान से, ओके। But is it overlapping? Yes, overlapping only. Because after 0 1 0 1 0, it is not starting fresh. Another 1 0, another 1 0, another 1 0 आएंगे तो it is giving 1. इसमें 3 बिट overlap हो गया। Last 3, first 3 same. Okay. So इसमें 0 1 0 के बाद 1 0 आएंगे तो another 1 0, another 1 0, हर 1 0 पे आउटपुट में 1 देता है। इसलिए इसको ओवरलैप्ड सीक्वेंस डिटेक्टर एग्जामिनर को नहीं चाहिए, बट हमारा एनालिसिस ऐसा हुआ we can do more than what he required। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस गेट क्वेश्चन, ट्राई करके आंसर बताओ। थोड़ा सा एनालाइज किया तो अच्छी होता है ना। read and tell me the answer। Yes. So the sequence detector is designed to detect precisely 3 digital inputs with the overlapping sequence detectable for the sequence 101. 101 and the input data is this much. What is the output data? What is it? Is a very simple question. What is the input data, sir? 1101 001 1 01 01 10, ठीक है। दिस इज द इनपुट डेटा 1101 0011 0101 0101 फिर 10, ओके। सो दिस इज द इनपुट। सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। A sequence detector is designed to detect sequentially precisely 3 digits with overlapping. You know the meaning of the overlapping now. So whenever 101 comes, what is that? 101 comes, you should give output में 1. Next, you should read like this. Whenever 101 comes, output में 1. Yes. Whenever 101 comes, output में 1. So बाकी केस में क्या होता है सर? 0. So examiner जो डेटा दिया ना, so you can take it as option A, B, C, D. It will not match with this, but if you read from here, it will match. So 1 followed by 5 zeros, 101 00. 1 followed by, उसको 5 क्यों आया? 5 zeros, 101 00. Yes, 1 followed by 5 zeros, 101 00. Yes, this is the answer. He has given the output sequence from here. First 2 bits he has neglected because the third bit onwards you generally get the output is the assumption he has taken. Okay, yes, so from here 01 00 000 10 10 101 00. Yes, this will finish your total sequential circuit and FSM in the best possible way, guys. All previous gate papers I have solved in the best possible. Once you read our theory, it is very easy for you to solve any single question.
हमारा थ्योरी पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चंस तो बहुत आसान हो जाएगा। सारे डिफरेंट मॉडल्स वी हैव डन मोर देन योर रिक्वायर्ड पार्ट। दिस विल बी आई होप सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो सीक्वेंशियल्स खत्म हो गया। कल क्लास से हम क्या करेगा, डाटा कन्वर्टर शुरू करेगा, लास्ट चैप्टर फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करेगा सर, लॉजिक फैमिलीज एंड सेमीकंडक्टर मेमोरीज फॉर ईसी स्टूडेंट्स लास्ट में डिस्कस करेगा। ठीक है, सो पहले क्या करना सर, कल से डाटा कन्वर्टर शुरू होता है। सो इसके पहले एक और पॉइंट मैंने 1 मिनट, एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए तो ट्राई कर लो, होमवर्क ले लो। होमवर्क भी नहीं चाहिए, एक डायरेक्टली देख के आंसर दे सकते हैं। द डिजिटल लॉजिक सर्क्यूट शोन, इट इज गेट 2014 का क्वेश्चन, satisfies the given state diagram when Q1 is connected to input A, when the Q1 is connected to the input A of the XOR gate. Suppose XOR gate is replaced with, see here, simple question, Q1 is connected to the A input, आपको क्या मिलेगा सर, Q1 XOR with S. Okay, leave it. अगर XOR is replaced by XNOR, ऐसा किया तो क्या होता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रिजर्व्स द स्टेट डायग्राम एज इट इज। इसमें व्हाट इज द कंडीशन, यस ले लिया, हियर क्या करना, Q बार ले लो बस, क्योंकि हियर Q1 बार X, सॉरी अरे यार, XNOR with S होल बार आएगा, इट विल गिव यू अगेन Q1 XOR with S। ठीक है, सो एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट किया तो XOR विल बिकम XNOR, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर वापस सेम आएगा। सो यू कैन राइट द एक्सप्रेशन एंड चेक इट, नो नीड टू रीड द स्टेट डायग्राम आल्सो इस क्वेश्चन में, इट इज जस्ट टू ट्रैप यू। यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेट डायग्राम, 0 0 में इनपुट S0 है तो क्या चलेगा, वो एनालिसिस चाहिए तो आप घर पे करो। सो आंसर करने के इनपुट ये में क्या किसको कनेक्ट करना चाहिए, डोंट मेक दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट, दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट किया तो XOR वापस आएगा। ओके, सो इट विल बिकम XNOR अगेन, सो इसलिए एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट करना। सो एक और पॉइंट मैंने बताया, ये आज का होमवर्क, आज का व्हाट वी कॉल चैलेंज का क्वेश्चन ही है भी है। सो मैंने दिया, थोड़ा सा ट्राई कर लो, मैं तो वापस लाइव पे आएगा 10 बजे। डोंट थिंक मच, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ओके, थोड़ा सा हिंट चाहिए तो दे सकते क्या, सर्क्यूट 0 0 में until, okay, so your input, one input, two outputs synchronous sequential ZK and NK, where zeros and ones, ZK and NK क्या represent करेंगे, number of zeros and ones in your given input sequence। ठीक है, so ZK और NK respectively bits, total number of bits कितना, Z plus N, क्योंकि our number of bits can be either 0 or 1। circuit outputs 0 until any one of this condition occurs। क्या सर, अगर number of zeros minus ones is equal to 2, okay, in this case or number of ones minus zeros is equal to 2, इस केस में 1 0 देता है, इस केस में 0 1 देता है। what is the minimum number of states required in the state transition graph of this particular circuit, आप लोग ट्राई करो। okay, I don't give you more than this information, solution तो मिलेगा 4-10 बजे। okay, so किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आपको स्टेट डायग्राम ड्रा करना चाहिए तो क्या करना, से फॉर एग्जांपल JK का Q कैन बी इन 0 and 1, Q 0 में है, 0 पे रहने के लिए आपको एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए। JK स्टेट डायग्राम, ये तो मैंने कल क्लास में होमवर्क दिया ना। So 0 is there, it want to state in 0, you should give the input 0 cross। अगर आपने, this is your J and K, if you give 0, you want next state 1, then what to do, give 1 cross, that is either 1 0 or 1 1। आप 1 पे है, 1 पे रहना चाहिए तो क्रॉस 0 ले लो, 0 0 और 1 0। 1 पे है, 0 पे आना चाहिए तो क्रॉस 1। दिस इज JK। सिमिलरली D फ्लिप फ्लॉप को क्या होता है सर, Q 0
Q1 इनपुट में 0 दिया तो 0 पर आएगा, 1 दिया तो 1 पर आएगा. This is your D. Just excitation table in a different way to represent will give you a state diagram of the flip flops. ये तो कल क्लास का होगा. सो आपको नोट्स मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे. सो पूरा स्टेट डायग्राम्स में तो कंप्लीट करेगा किया. सो पढ़ो अच्छी से, रिवाइज करो. कल से लास्ट चैप्टर डाटा कन्वर्टर्स तो शुरू करेगा, कल पे वापस लाइव पे आएगा. सो यस, यू कैन फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल्स फॉर रेगुलर नोट्स एंड ऑल. So follow our channels for more and more live updates like this and the best possible classes like this. फिर हम कल मिलेगा डाटा कन्वर्टर शुरू करके, डाटा कन्वर्टर्स का डिस्कशन कल शुरू करेगा वापस. ठीक है. थैंक यू वेरी मच गाइस. सो यस, बिग थैंक यू टू यू. थैंक यू वेरी मच. सो आई डोंट वांट योर लर्निंग टू बी स्टॉप्ड, इसलिए प्रीमियर किया आज का क्लास. कल से फिर लाइव पे आके वी विल डिस्कस मोर एंड मोर एक्साइटिंग क्लासेस. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय.